بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا کہنا تھا کہ عورت ہر چیز ہر کسی کے ساتھ بانٹ سکتی ہے، لیکن واحد اپنا شوہر کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ اور جو عورت اپنا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ بانٹ سکتی ہے، یا تو وہ عورت ہی نہیں ہوتی یا پھر وہ بے وفا ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی مجبوریاں بھی انسان کے آگے آتی ہیں کہ ہمیں وہ بھی کرنا پڑتا ہے جو کبھی نہیں کیا ہوتا۔ میرا نام دعا زارا ہے۔ میں اور میرا بھائی اپنے ماں باپ کی دو ہی اولادیں تھیں۔ میں کوئٹہ کے امیر گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابا سرکاری نوکری کرتے تھے اور ہم دونوں بہن بھائیوں کو پتیلے کا چھالا بنا کر رکھا گیا۔ کچھ اللہ کے کرم سے گھر میں ہر چیز موجود تھی، تو ابا نے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ اچھا کھلایا، پڑھایا اور پہنایا۔ میں میسی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ جب یونیورسٹی میں مجھے ایک زکریا نامی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا اور مجھے اس کی خاموشی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، نہ لڑکوں میں بیٹھتا تھا اور نہ ہی لڑکیوں میں، بس چہرہ جھکائے اپنے کام سے کام رکھتا۔ اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ میں نے اسے دوستی کرنی چاہی، لیکن اس نے مجھے 2 بار دھتکار دیا۔ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، ضد کیسے نہ کرتی۔ 2 بار دھتکارے جانے کے بعد جب میں گھر آئی تو بخار میں تپ رہی تھی۔ ہفتہ بخار میں رہنے کے بعد جب ہوش میں آئی تو پتہ چلا پورا گھر میری فکر میں بکھلایا ہوا ہے۔ میرے ابا میرے لیے بہت پریشان تھے۔ اماں بھی بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرتی، آنسو بہنے سے روک رہی تھی۔ میں خاموش رہنے لگی، لیکن میرے گھر والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ تبھی اماں نے مجھے اس خاموشی کی وجہ پوچھی، تو میں نے بغیر جھجک کے بتا دیا کہ میں کسی سے پیار کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں چاہتا۔ اماں ابا نے مجھ سے حامی بھر لی کہ وہ زکریا کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ امیروں میں یہ بات معیوب تو نہیں سمجھی جاتی، تبھی اس بات کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر رشتہ لے کر جائے اور لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں بھی بہت خوش ہو گئی۔ اگلے دن جب میں یونیورسٹی گئی تو پتہ چلا زکریا یونیورسٹی نہیں آیا۔ پہل تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اس خوشی میں سب کچھ فراموش کر دیا۔ آخر کو مجھے زکریا کے پاس ہی جانا ہے۔ اماں ابا اس روز زکریا کے گھر چلے گئے۔ زکریا کے گھر کا پتہ میں نے اس کے کچھ دوستوں سے لے لیا۔ شام کے وقت جب وہ واپس آئے تو میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ میرے والدین مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابا کچھ بھی کہے بغیر کمرے میں چلے گئے، جبکہ اماں میرے پاس آئیں اور مسکرا کر میرے سر پر پیار دیا۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی، شاید ابا ایموشنل ہو گئے ہیں۔ لیکن اماں کی اگلی بات نے تو جیسے میرے جسم سے روحیں کھینچ لی۔ جب اماں نے مجھے بتایا کہ زکریا ہمارے معیار کا نہیں ہے، وہ ایک ڈرائیور کا بیٹا ہے اور اس کے ابا کے مالک نے ہی اسے پڑھنے کے لیے اتنی اچھی یونیورسٹی میں بھیجا ہے، میں وہ ساری رات جاگ کر کاٹتی رہی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا میں کیسے ایسے انسان کے ساتھ پیار کر سکتی ہوں، لیکن پیار تو سوچ سمجھ کر نہیں کیا جاتا۔ اگلی صبح میں خاموشی سے یونیورسٹی چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو زکریا پہلے سے موجود تھا۔ میں نے جاتے ہی اس کا گریبان جکڑا اور اس کو سب کے سامنے بے عزت کر دیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی، اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا، بس خاموش رہا اور میری طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں تنہا کلاس میں جا کر رونے لگی۔ مجھ پر تو جیسے پیار کا بھوت سوار تھا۔ اس دن گزرنے کی دیر تھی۔ میں گھر پہنچی اور جاتے ہی شور مچا دیا کہ مجھے زکریا سے ہی شادی کرنی ہے۔ میرے والدین نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن سمجھ تو تب آتی جب سر سے پیار کا بھوت اترتا۔ اماں ابا دوبارہ میرے ضد کرنے پر زکریا کے گھر چلے گئے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میرا رشتہ طے ہو گیا۔ لوگ غریب ضرور تھے، لیکن شریف لوگ تھے۔ لیکن زکریا سے رشتے کے بعد میری سزا شروع ہوئی۔ مجھے سب نے بہت سمجھایا، میری سہیلیوں نے بھی سمجھایا۔ صرف پیار محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد انسان کو جب کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تو سمجھ آتا ہے کہ زندگی اصل نام کس کا ہے۔ میرے جہیز کے نام پر میرے ماں باپ نے دنیا کی ہر چیز مجھے لا کر دی، بنگلہ گاڑی، تاکہ ان کی بیٹی آرام اور سکون سے رہ سکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، چیزیں بھی نصیب سے استعمال ہوتی ہیں۔ میرے نصیب سے شاید میری خوشیاں میں نے خود ہی ختم کر دی تھی۔ اپنے نصیب کا گلا میں نے خود گھونٹا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر میرا نکاح ہو گیا۔ زکریا بہت خاموش طبیعت تھا۔ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ شروع میں لڑکے بہت خوش مزاج ہوتے ہیں، لیکن زکریا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جیسے وہ اس رشتے سے خوشی نہ ہو۔ میں اکثر ایسے ہی سوچتی اور پھر خود کو تسلی دینے کے لیے خود ہی اس بات کو جھٹلا دیتی، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے۔ میں نے بھی زکریا کی عجیب سرگرمیاں دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند رکھی۔ ایک روز شرارتاً میں ان کے گھر کے پاس سے گزری۔ امیر باپ کی امیر بیٹی تھی۔
तो गाड़ी की चाबी हर वक्त मेरे पास ही रहती थी। मैंने देखा ज़करिया अपने घर से निकलता हुआ सामने से आते रक्शे पर बैठा है और रक्शे को आगे चलने को बोला। मैं भी पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब वो निकलकर एक बंगले में चला गया, जिसके बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ हर तरह का इलाज किया जाता है। मैं नहीं जानती थी कि इस बंगले के अंदर इलाज के नाम पर क्या होता है, लेकिन ज़करिया का वहाँ जाना मुझे बड़ा अजीब लगा। मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी, इसलिए बात को रफा दफा करते मैं घर वापस आ गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक हलचल मची हुई थी, न जाने ज़करिया को क्या हुआ है जो वहाँ गया। घर में किसी से जिक्र करती तो अम्मा अब्बा मुझे फिर से समझाने बैठ जाते। मोहब्बत को खो देने के डर से मैंने किसी से ज़करिया के बारे में जिक्र न किया। वक्त का काम है गुजर जाना, वक्त तो गुजर ही जाता है। दिन पर लगा कर उड़ गए और वो दिन भी आ गया जब मुझे ज़करिया के हमरा उसके घर रुखसत होकर जाना था। अम्मा अब्बा से मिलते हुए कई आंसू मेरी आंखों की बार तोड़कर निकले। वालदैन थे, इसलिए दुआओं में मुझे रुखसत किया। शादी की रात भी ज़करिया ने मुझसे कोई खास बात नहीं की। मैं हैरान थी कि ज़करिया का रवैया अजीब था। शादी का पहला दिन था, घर मेहमानों से भरा हुआ था। छोटा सा घर भी मुझे जन्नत से कम ना लग रहा था, क्योंकि यहाँ मेरी मोहब्बत थी और मोहब्बत तो अंधी होती है। शादी के कई दिन बाद ज़करिया घर पर बोलकर अपने कज़न की तरफ चले गए। मैं परेशान हो गई और अक्सर रोने लग जाती। मेरे रोने से वहाँ किसी को क्या लेना देना। मेरी सास और मेरी एक नंद अपनी ज़िंदगी में मगन थे और मेरा छोटा देवर अजीबोगरीब आदत का मालिक था। मैं जब किचन में काम कर रही होती तो वो अक्सर मेरे पास आकर खड़ा हो जाता और मुझसे अजीब अजीब बातें करता। आपने क्या देखा था ज़करिया में? आप अब भी चाहें तो आप ज़करिया से तलाक लेकर मुझसे शादी कर सकती हैं। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ज़करिया से अपने देवर के बारे में बात ज़रूर करूँगी, लेकिन बात तो उस वक्त करती जब ज़करिया मुझे वक्त देते, लेकिन उन्हें तो जैसे अजाब लगता था। मैं बहुत बुरा महसूस करती थी, लेकिन खामोश रहती। जान तो उस वक्त निकली जब घर में मेरी सास ने एक नई ख्वाहिश पैदा कर दी। मेरा जिस्म एकदम सुन पड़ गया, जैसे किसी ने रूह को खींच लिया हो। मेरी सास अब पोता पोती का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन वो क्या जानती थी कि उनके बेटे और बहू में अंडरस्टैंडिंग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। प्यार मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। रात के वक्त ज़करिया जब घर आए तो मैंने उन्हें समझाया, उनसे ज़बरदस्ती बात की। खाना खाते वक्त उन्होंने बस हूँ हाँ की। मैंने अपनी देवर की बात को छुपाते हुए अपनी सास की नई ख्वाहिश के बारे में आगाह किया। औलाद का नाम सुनते ही जैसे मियाँ बीवी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, पर मेरे शोहर के चेहरे पर एक अनदेखी सी बेचैनी थी। खौफ था, चेहरे पर आया पसीना मुझे कश्मकश में मुब्तला कर गया। मैंने फिक्रमंदी से जैसे ही अपने शोहर के माथे पर हाथ रखा तो वो एकदम घबराकर मुझसे दूर हो गए। मैं तो अपने शोहर की हालत देखकर खौफजदा हो गई कि ये सब क्या है। मैंने अपने शोहर से कोई सवाल न किया और उनके सामने से बर्तन उठाकर किचन में रखाई। ये सर्दियों की यख ठंडी रात थी। वो घर की बालकनी में चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर पसीना ऐसे था जैसे जून जुलाई की गर्मी में आता है। सुबह मैं नीचे आई, अपनी सास और अपने लिए नाश्ता बनाया। नंद कॉलेज जा चुकी थी। अब तो घर रह रहकर मैं भी बोर होने लगी थी। मैंने भी ठान ली कि मैं अपनी सास से बात जरूर करूंगी। मैंने उन्हें मुतवज्जो किया तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे सालिम निकल जाएंगी। मैंने हिम्मत की और अपनी सास से कहा, मुझे दोबारा से पढ़ाई शुरू करनी है। सास तो जैसे पत्थर की हो गई और मुझे जोर से डांट दिया। अब क्या जरूरत पड़ गई है पढ़ने की? जब पढ़ने की उम्र थी तब तो इश्क मशूकी खत्म नहीं हो रही थी तुम्हारी। अब दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरा रंग सफेद पड़ गया। मुझे अपनी सास से ऐसे जवाब की तवक्को ना थी। मेरी तो जैसे जान ही लबों पर आ गई। कहाँ अम्मा अब्बा ने कभी उफ तक नहीं कहा और कहाँ इतनी बातें सुनने को मिल गई। मैं खामोशी से अच्छी बहू की तरह वापस अपने कमरे में आ गई। खूब रोई कि जिसके नाम के ताने मिल रहे थे ना तो वो मेरा था, और जो ताने दे रहा था ना वो मेरा था। मेरे वालिदैन ने दोबारा कभी मेरी तरफ मुंह ना किया। मैं भी उनकी तरफ जाती तो किस मुंह से जाती। बहुत धड़ल्ले से कहकर निकली थी कि मैं वहाँ खुश रहूंगी। उस रात पहली बार मेरे शोहर ने मेरी तरफ गौर से देखा और मेरी सूजी आंखें देखकर परेशान हो गया। मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझसे रोने की वजह पूछी। मुझे और क्या चाहिए था? मैं तो इसी में ही राजी हो गई। बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ औलाद की कमी भी मुझे शिद्दत से महसूस होने लगी। कुछ मेरी सास के ताने और मेरे शोहर की लापरवाही ने मुझे मजीद चिड़चिड़ा और बदजन कर दिया।
मैं अपने शोहर को जिद करके डॉक्टर के पास जाने को बोली तो वो हत्ते से उखड़ गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने और चीखने चिल्लाने लगा। पूरा घर सर पर उठा लिया। मुझे उसके रवैये की बिल्कुल समझ ना आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसको औलाद की ख्वाहिश नहीं? ये नहीं चाहते कि घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे? अब तो जैसे मैं हर चीज़ से थकने लगी थी, हर चीज़ से औजार, हर चीज़ से बेदिल हो गई थी। लेकिन मेरे शोहर समेत मेरे तमाम ससुरालियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शादी के 2 साल बाद मेरी नंद ने नया शोशा छोड़ा कि ज़करिया दूसरी शादी कर ले। मुझे तो जैसे ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया गया। ये बात मेरे लिए ज़मीन में जिंदा दरगोर कर देने वाली थी। हर वक्त ये बात सुनाते रहना कि मैं बांझ हूँ उनका काम बन गया था। कभी दूसरी शादी की धमकी तो कभी मुझे तलाक देने की ख्वाहिश मेरे कानों में सीसा पिलाई डालने के बराबर थी। एक औरत होकर अपने माँ बाप की लाडली बेटी होने के बावजूद मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर। लेकिन अगर मोहब्बत आपको अजियत देने लग जाए तो उस पर फातिहा पढ़ लेना सारी जिंदगी अजियत से भरपूर गुलामी की जिंदगी गुजारने से काफी बेहतर है। कई साल मैं भट्टी में पकती रही, लेकिन एक पल को भी सुकून मेरा नसीब न बना। शादी के कई साल तक औलाद न हुई। अब मैंने अपने शोहर को डॉक्टर के पास जाने का कहा तो वो अब भी गुस्सा करते, लेकिन इस बार मैं पीछे न हटी। सास को कहा तो उन्होंने मुझ पर ही इल्ज़ाम डाल दिया कि मैं अपने बांझपन का कसूर मेरे बेटे पर डाल रही हूँ। लेकिन इस बार तो मैं किसी कीमत पर पीछे न हटी। जो भी जैसे भी करके मैंने अपने शोहर का मुआयना करवाया और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर पहले तो मेरे शोहर को देखकर हैरान रह गए। मुझे लगा जैसे एक दूसरे को जानते हो, लेकिन मैं हैरान भी थी कि ये लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं, क्योंकि ये हमारे घर से कुछ दूरी पर था। और फिर मेरे शोहर का यहाँ क्या काम? मैंने डॉक्टर से मुआयना करने को बोला, तब मालूम हुआ कि मेरा शोहर कभी बाप नहीं बन सकता, मतलब वो एक नामर्द था। लेकिन मेरी आंखें हैरत से फटने को थी जब पता चला कि डॉक्टर ने बहुत पहले ये बात मेरे शोहर को बता दी थी, और मेरे शोहर ने ये बात सबको बता रखी थी, सिवाय मेरे। मेरा ससुराल सब जानता था, मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। मेरा सर फटने लगा, आसमान आंखों के सामने घूमने लगा। मैं रोते हुए क्लिनिक से निकली और पुरशिकवा निगाहों से अपने शोहर की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। फिर एकदम रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। लेकिन मैं इस वक्त अकेला रहना चाहती थी। मुझे किसी की भी बात सुनने का दिल न कर रहा था। मैं घर पहुंची और चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया। फिर एक एक करके सबको आईना दिखाया। सबके चेहरे शर्मिंदगी से झुके हुए थे। फिर मैंने अपने देवर की तमाम बातें अपने शोहर को तंजिया बताई, तो जैसे वहां खड़ा हर शख्स हैरान नजरों से मेरे देवर को देखने लगा, जैसे उन्हें मेरे शोहर की इस हरकत की उम्मीद ना हो। खैर, वक्त का काम है गुजरते रहना, वो गुजर ही जाता है। अब मैं अपने शोहर को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब वो अपना इलाज करवाने लगे थे। वो उसी जगह पर दिखाने के बाद भी जब मेरे शोहर को आराम ना आया तो वो भी अब मायूस होने लगे। मेरी मोहब्बत ने ये गवारा ना किया कि मैं उन्हें इस मुश्किल वक्त में तन्हा छोड़ दूं। हर पल हर लम्हा मैं उनके साथ रही। एक रोज़ मैं उनके साथ एक नए डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन वहाँ भी उनका इलाज नामुमकिन था। मैं अपने शोहर के साथ घर के लिए निकली तो एक लंगड़ी फकीरनी ने मुझे देखकर बोला, बीबी, अपने शोहर की शादी मुझसे करवा दे तो इसका इलाज कर दूंगी और तुझे जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेरी रूह कांप गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। कुछ वक्त और सोचने के लिए लिया। उसके बाद मैं खुशी खुशी राजी हो गई और शोहर की शादी फकीरनी से करवा दी। मेरा तो जैसे हर फैसला ही गलत था। मुझे खुद से घिन आने लगी थी, क्योंकि मैंने अपने शोहर को किसी के आगे फेंक दिया। मैं कितनी बेबस थी, कितनी अजनबियत थी मेरे शोहर की आंखों में। उस वक्त जब मैंने फकीरनी से शादी के लिए उनको मना रही थी, वो किसी सूरत मानने को तैयार न थे। बहुत मुश्किल से अपनी कसम देकर मैंने उनको फकीरनी से शादी पर राजी किया। फकीरनी ने मुझे अपना पता दिया। वो एक खुली जगह थी जहाँ छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी थी। अब तो मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल होने लगा, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहती थी। एक माह तक शोहर वापस न आया तो मैं अपने शोहर को तलाश करने लगी। सबसे पहले मैंने फकीरनी की झोपड़ी ढूंढी, लेकिन अंदर झांका तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहां तो कोई भी मौजूद न था। मैंने इधर उधर की झोपड़ियों में पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ तो अरसा दराज से कोई भी रिहाइश पजीर नहीं।
मुझे हैरत का गहरा झटका लगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास तो उस फकीरनी का कोई पता भी ना था। मैंने इधर-उधर झाँका, लेकिन सब बेकार। वो फकीरनी वहाँ होती तो मिलती। मैं जल्दी से घर पहुंची और सारा किस्सा अपनी सास को बताया। मेरी सास ऊँची-ऊँची रोने लगी और मेरी नंद भी मुझे बुरा-भला कहने लगी। मैंने जानबूझकर उसके भाई को उस फकीरनी के साथ भेजा था। मेरी तो जान ही निकलने लगी थी। ये सब तो मैंने तसव्वुर भी ना किया था, जो मेरे साथ हो रहा था। मैं कई दिन इंतज़ार करती रही, कई दिन उस झोपड़ी में जाकर देखती रही, लेकिन वहाँ ना बंदा ना बंदे की साथ। अब तो जैसे मैं मायूस होने लगी थी। वक्त जैसे रुक सा गया। कई जगहों पर मैंने अपने शोहर को तलाश किया, लेकिन नाउम्मीदी से घर लौट आती। एक रोज़ मैंने अब्बा के घर जाने का फैसला किया, ताकि उनकी मदद से मैं अपने शोहर को तलाश कर सकूं। जब मैं अपने अब्बा के पास अपने आलीशान महलनुमा घर में गई, तो मुझे ऐसी हालत में देखकर मेरे अब्बा आंसुओं के साथ रोने लगे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, उनको हौसला दिया और उनको सारी तफसील बताई। अब्बा ने मुझे अफसोस से देखा कि मैं मोहब्बत के अफसाने पढ़ने वाली एकदम कैसे बहक गई। अपना शोहर एक फकीरनी के साथ न जाने कहाँ भेज दिया। मैं अब्बा के आगे हाथ जोड़ने लगी और उनसे मदद तलब करने लगी। उन्होंने भी मेरी मदद करने की ठान ली और मुझे अपने कज़न के पास ले गए, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरे शोहर को ज़रूर तलाश करेंगे, लेकिन उनकी एक बात ने जैसे मेरे वजूद से जान खींच ली हो। जब उन्होंने ये बताया कि एक गैंग जो फकीर बनकर लोगों को उनकी कमजोरी से पकड़ता है और उनको अपने जाल में फंसाकर उनके गुर्दे, दिल और जिस्म के कई अज़ा निकाल कर उनको बेच देता है और लोगों का कत्ल करके उनको खेतों या वीरानों में फेंक देता है। मेरी टांगें खौफ से कांपने लगी। मेरे अब्बा ने मुझे बर वक्त थामा, वरना मैं तो ज़मीन बोस हो चुकी होती। मैं अपने अब्बा के सीने से लगी रोने लगी। अब्बा ने मुझे हौसला दिया और बहुत समझाया कि ज़करिया को कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा। दिल में अजीब-अजीब से वसवसे आने लगे। अब्बा मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैंने बहुत ज़िद की कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा जब तक ज़करिया मिल नहीं जाता, मैं उनके साथ ही रहूंगी। मैं मान भी गई और उनके हमरा घर चली गई। मेरी अम्मा तो जैसे मुझ पर वारे सदके होने लगी और मैं अपनी अम्मा के सीने से लगी बहुत रोई। सबसे एक फ़ायदा हुआ कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी और अपने शोहर के मिल जाने की दुआ करने लगी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे अम्मा और अब्बा को तो यकीन ही ना आता था कि जीन्स और टी शर्ट पहनने वाली और फैशन करने वाली ये लड़की एकदम कैसे बदल गई, एकदम कैसे सादगी इख्तियार कर ली। अम्मा शाम का खाना बनाने लगी। मैं किचन में चली गई। अम्मा से कहा आज खाना मैं बनाती हूँ, तो वो मेरी तरफ मुंह खोलकर हैरानगी से देखने लगी, जैसे कह रही हो आज सूरज किस तरफ से निकला है। मैंने मुस्कुराकर अपनी अम्मा की तरफ देखा और उनके गले से लग गई। बोला अम्मा अब मैं बड़ी हो गई हूँ। शादी के बाद बेटियां बड़ी हो जाती हैं। मैं भी ऐसे ही बड़ी हो गई हूँ। मेरी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे माथे पर बोसा दिया। मैं अपने वालिदैन की लाडली ज़रूर थी, लेकिन इतना पाकीज़ा प्यार मुझे कभी ना मिला था। मैंने आंसू साफ किए और खाना बनाने लगी। अम्मा मेरे पास कुर्सी पर बैठ गई। मुझे इतनी सफाई और सुघड़पड़ से काम करता देखकर मुस्कुराने लगी। अम्मा ने मुझसे पूछा, बेटा ये सब कहाँ से सीखा है? तो मुझे हंसी आ गई अपनी अम्मा की मासूमियत पर, और फिर उनके जवाब दिया, अम्मा मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है। मोहब्बत अपना आप मनवाती है। मेरी अम्मा ने कभी मेरे मुंह से इतनी बड़ी बातें ना सुनी थी। वो खामोशी से सर झुका गई। कुछ देर गुजरी तो वो खास माँ वाले सवाल करने लगी कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कैसा है और मेरी नंद का रवैया कैसा है। मेरी नंद कुछ कहती तो नहीं है। मैंने मुस्कुराकर अपनी अम्मा को तसल्ली दी। कहा अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बहुत अच्छे हैं। झूठ बोलने का एक फायदा हुआ कि मेरी अम्मा के चेहरे पर सुकून सा तारी हो गया। खाना तैयार हो चुका था। इतनी जल्दी खाना तैयार होता देखकर मेरी अम्मा को भी यकीन हो गया कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है, जिसका इजहार उन्होंने मेरे हाथ चूम कर किया। और मुझे बोली जब ज़करिया मिल जाएगा ना, तो उसका शुक्रिया अदा करूंगी। उसने अपनी मोहब्बत से मेरी बेटी बड़ी कर दी। खाना लगाया। अब्बा ने निवाला लेते ही खाने से हाथ उठा लिया। मुझे लगा खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन जब अब्बा ने अम्मा को कहा कि बाहर से खाना क्यों मंगवाया है, बेटी आई थी घर खाना बनाती। भला ये बेशक बहुत मज़े का है, लेकिन इसमें बाहर का जायका आ रहा है। अब्बा की बात सुनकर मैं कई साल बाद खिलखिलाकर हंसी। अब्बा मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए।
جب اماں نے ان کو بتایا کہ یہ کھانا میں نے نہیں بلکہ ان کی بیٹی نے بنایا ہے تو ان کو تو جیسے اس بات کا یقین ہی نہ آیا۔ اتنی تبدیلی کسی کو بھی ہضم نہ ہو رہی تھی، لیکن یہی حقیقت تھی۔ میں زکریا کی محبت میں خود کو بدل چکی تھی۔ ابھی ہم خوشگپیوں میں کھانا ہی کھا کر ہٹے کہ ابا نے مجھے انعام کے طور پر کئی پیسے دیے۔ یہ ابا کی پرانی عادت تھی، جب بھی میں کوئی اچھا کام کرتی وہ مجھے انعام کے نام پر پیسے دیتے۔ اچانک ابا کے فون کی گھنٹی بجی۔ ابا نے فون اٹھایا تو ایک دم ابا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ابا کے تاثرات دیکھ کر میری بھی جان نکلنے لگی۔ ابا نے فون پر موجود شخص سے کچھ باتیں کی جس کی مکمل سمجھ نہ آ رہی تھی۔ فون بند کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے پورا راستہ اپنے ابا سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کہاں جا رہی ہیں؟ تو ابا نے بس مجھے اپنے ساتھ لگایا، بولا دعا کرو جو سننے میں آیا ہے وہ سب جھوٹ ہو۔ گاڑی ایک سنسان رستے پر جا کر رکی اور ابا مجھے کھیتوں کی طرف لے کر چل پڑے۔ کھیتوں میں جا کر دیکھا تو وہاں پر بہت سے پولیس اہلکار جمع تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو ابا نے مجھے ایک سفید کپڑا لپیٹے وجود کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ جس پر سفید کپڑا دیا ہوا تھا وہ جگہ جگہ سے خون میں لت پت تھا۔ ابا کے اشارے پر پولیس اہلکار نے اس وجود سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو ایسا محسوس ہوا جیسے پورا آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ زکریا تھا جس کو بہت بے دردی سے مار کر کھیتوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے اپنے ابا کے سہارے کھڑی تھی۔ ابا بھی رو رہے تھے۔ مجھے تو جیسے یقین ہی نہ آ رہا تھا، میری تو ساری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میت کو گھر لایا گیا تو زکریا کے گھر جیسے قیامت کا سما تھا۔ ہر طرف چیخیں گونج رہی تھی۔ اس سب کی قصوروار بس میں تھی۔ زکریا کی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ میری لالچ نے مجھے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ زکریا کی موت نے جیسے سب کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میری ساس نے مجھ سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ کوئی مجھے بلانے کا روادار نہ تھا۔ اس سب کا خمیازہ میرے چھوٹے بھائی کو بھگتنا پڑا، ایک ناپسندیدہ عورت یعنی میری نند سے شادی کرنے کی صورت میں۔ لیکن میرا بھائی بھی بہت ہمت والا تھا، تبھی اس نے میری نند سے شادی کر لی۔ لیکن وہ دونوں کے نصیب اچھے تھے، تبھی وہ گھر سکون اور خوشیوں سے بھر گیا۔ میری نند نے اپنی پہلی اولاد میری جھولی میں ڈال دی۔ کیونکہ میں کسی کی اولاد پر حق جماتی، میں نے اپنی نند کو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اس کی اولاد اسے واپس کر دی۔ میری ساس نے مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں ان کے چھوٹے بیٹے یعنی اپنے دیور کے ساتھ شادی کر لوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری ساس کو بھی میرے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ابا سے کہہ کر میں نے ایک NGO بنوایا جہاں لاچار مجبور ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے تھے۔ میں ان کی مدد کرنے لگی، یا شاید اپنے گناہوں میں کمی کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ آج میں لاکھوں بچوں کو اپنے بچے بنا کر پال رہی ہوں۔ شاید مجھے اللہ نے اولاد اسی لیے نہیں دی تھی کیونکہ مجھے اتنے بچوں کو جو پالنا تھا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ وہ جو دے جتنا دے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ بھی چھین لیتا ہے جو اس کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔